Okay, so hi Tarun, finally happy Hello. to meet you. Very excited to know your journey, how you progressed from like all these years and joined Sharp and then got a job. So we'll discuss all of that today. So Tarun, first of all, you mind introducing yourself to everyone? Yes, sir. Hello, everyone. Myself Tarun, and I'm a BTech graduate of in the field of computer science. And I done my graduation from the Gurgaon IGT University. Now, the last year I joined the Red Sharpener, and currently I got placed at a very high position at a front-end developer, and got a very good placement from there. And there is a very beautiful journey for me with the sharpener. Actually, they are very supportive. The HRs were very good, and in fact, the faculty members are also very good. They are always available at the time. Whenever you will like text him or call him, they will always respond to my call. So it's a very beautiful journey. Tarun, before Sharpener, how was your journey? Like, I mean, before you joined Like before Sharpener. sharpener, sir, yeah. So before sharpener, my journey was like there is a very difficult time because to join the company at a because at this position like right as a front end developer like like if we do like if we join at any company in the starting phase as an internship then we got a placement of around 10,000 or 50,000, not more than that. But Uh-huh. after sharpener, we got placed like today I got 5 to 7,000 per month. So it is due to the sharpener. I doesn't get this type of a huge amount at a very initial phase of my life. Right. By the way, like I received feedback from Tarun's HR also. What we do is like once we help someone get a job, then you also connect with the HR just to know that हाँ हमारा student ढंग से काम कर रहा है ना, just to make sure Yes, कि quality अच्छा है. And they were very happy with your performance, Tarun. Like they were saying like yeah, like we'll start hiring next month again. So please send more candidates and like it's students like you who would make this possible. yes, sir. Sir, in fact, when I joined the sharpener, then after like 2 to 3 weeks, I'll join my two more friends like Jitin Chauhan and Himanshu Sharma. They also get placed at a very high position and at a very good package. So they both will get placed, and in fact, the HRs were like like during your learning phase, like when you learn the code, then the faculty member were good, and after that, when you got when you complete your course and you go to the placement cells, then the main responsibility for the HR, there are many HR I think in the sharpener, so they will get a call from many like if we like for me, they they give me the call of Chhattisgarh, Raipur, Bangalore, but at the end when I told him that I want a job only from the Noida and Gurgaon location, then around 20 to 15 calls I'll get from there. Only for the Delhi and Gurgaon jobs. Yeah. And the one I got placed, and So, then like some people are a bit worried about their course journey. So, how was your learning phase like? Which parts did you get stuck? If you want to explain that to people. yes, sir. So definitely, sir. So actually, some of the parts like don't copy anything from anybody. Like if you copy that, then you will face a lot of the problems after that after in your interview process and in your joining time, because in the joining time nobody will going to help you. It's your call to do the interview, because the how much good interview you will give, the much greater package you will get. So don't copy anything from, because some of the students I'll get a message right now even after it's been a time when I leave the sharpener, but now I'll get the calls from many of the students to give me the code of array, to give me the code of DSA, the web development. So don't do that. Do it by yourself, because it will increase your skills. Because when you go to the company, you will have to responsible and you have to do it by your own. Like some of the time, the company will give you company will give you a task or a project, and you have to done it by your own. Then nobody will going to help you. So at that time, if you done that course by by your own, then you can easily do that at that time, because nobody will teach you how the functionality will done. Nobody will teach you how the API has been done.
So it is a part you will have to learn all those things. So it's a major thing. Tarun, actually, Like don't do. this is a big problem. Like now ChatGPT is there, so this is becoming more easy. But even before ChatGPT, like when we were telling people that, like, you know, focus on their skills, don't just randomly copy code and all those things, तो लोग ये सुन नहीं रहे थे. And when they reached the placement stage, then they were saying कि सर मेरा जो interview calls क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. And अब कैसे बोले कि your fundamentals are weak. So now what we have done is we have introduced tests at every check, and we are also pushing back students if they are not prepared. So were you ever like pushed back at any stage because you were not clear with your concepts, or you made sure your concepts are clear and then you progressed ahead? No sir, at the beginning my first task is to make our code. Like मुझे पता था मुझे क्या करना है. मुझे पता था कि मतलब क्या कहते हैं, शुरू में अगर मेरे को एरर से स्टार्ट करना है तो पहले मेरे को मतलब पूरा का पूरा वो अच्छे से खत्म करना है. सर आप यकीन मानिए, मैंने अपने टाइम पे मेरा जो ऊप्स का इंटरव्यू था वो 3 बार में क्लियर हुआ था. फिर डीएसए का 1 बार में हो गया, वेब डेवलपमेंट का 1 बार में हो गया. लेकिन जो बेसिक था ना सर, उसमें वो टाइम लगा, और वो टाइम लगना सर बहुत अच्छा हुआ. आज के टाइम पे जैसे कि हम जब कंपनी में काम करते हैं तो उसमें वो चीज इतनी बेटर वे में काम हो जाती है, बिकॉज फंक्शनैलिटी हम लोग बहुत अच्छे से अब हैंडल कर लेते हैं. अब जैसे क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, कुछ डीओ से क्वेश्चन पूछते हैं. मतलब कुछ क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि हमें ये क्वेश्चन तो आना ही इंटरव्यू में, मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन आना ही आना है. इसके बाद क्या कहते हैं एरे शॉर्टिंग का क्वेश्चन आना ही आना है. डीएसए में आप चाहे मतलब क्या कहते हैं ये, मैं तो जैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो फ्रंट एंड डेवलपर में तो ये सब क्वेश्चन कॉमन है. एक मल्टी डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना, ये सब क्वेश्चन सर कॉमन है और ये सब क्वेश्चन आते ही है. बट कंपनी क्या होती है ना, कई बार वो इस क्वेश्चन को भी और अलग तरह से पूछती है. पहले आपको एक एरे दे देगी, फिर कहते हैं कि आप इसे मल्टी वो डायमेंशन में कन्वर्ट करो, फिर इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करो, फिर इसको शॉर्ट करो, फिर इसको हैश करो. मतलब वो चीजों को आपको मतलब घुमाती रहती है, और वो चीज आप तभी कर पाओगे जब आप कहते हैं वो चीज को अच्छे से आपने क्लियर कर रखा हो. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इजी है. और सर जैसे कि चैट जीपीटी है, सर चैट जीपीटी आपको बस एक कुछ ही जगह परफॉर्म करेगी, आपके कोड में छोटी मोटी हेल्प कर देगी, पूरा कोड आपको लिख के नहीं देगी. वो आपको फिर लॉजिक से खुद ही करना पड़ेगा. और जब आप एक रियल टाइम पे रियल पर वो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहां पे आपको चैट जीपीटी आपको बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगी. राइट. प्लस एपीआई इंटीग्रेशन है, तो एपीआई इंटीग्रेशन का भी एक प्रॉपर तरीका होगा. आप जब एक कंपनी में काम करेंगे तो एपीआई इंटीग्रेशन के लिए भी आपको एक अलग कंपोनेंट कॉल करना पड़ेगा एपीआई के लिए. आप हर जगह हार्ड कोड करके या फिर हर जगह वैसे लगा पाओगे. आप उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. आप उस प्रोसीजर से कॉल करोगे जिससे बस ट्राई करो कोड कम लिखे और वो उसका काम ज्यादा करे. Right. Tarun, by the way, you are currently a front-end developer, but like yes sir, in Sharpener, did you do both of them? Did you also do backend, or you just stuck to front-end? So actually, I started the backend and I will do the Node.js and Express.js also. But मेरा जो main part था वो front-end ही था. Because backend में मैंने मतलब कि वो कर दिया था. मैंने अभी Node.js और Express.js सीख लिया था. अब मुझे MongoDB और क्या कहते हैं वो SQL वगैरह सीखना बाकी था. बट उससे पहले वो मेरी जॉब क्या कहते हैं वो काफी अच्छी प्लेसमेंट हो गई, तो मैंने अभी उसे होल्ड पे कर दिया ताकि मैं अभी उसे ज्वाइन करूंगा. गॉड. अभी वो कोर्स मेरा चल, बिकॉज़ फुल स्टैक तो सर करना है. फुल स्टैक में क्या है, आपका एक पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है, आपको अकेले हैंडल करना है, करो आप. और सब वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत एक्साइटमेंट रहता है. Yeah. See, this is the good thing. I mean, you have received a good job in a good company, good package, everything that you're learning there also. But at the same time, you also want to expand your skill sets. And I think this will be very beneficial for you. Like अगर जैसे कि मैं भी ये फ्रंट एंड में भी हूँ सर. फ्रंट एंड में केवल रिएक्ट नहीं और भी लैंग्वेज होंगी. अब जैसे कंपनी की डिमांड आ गई, आपको jQuery, आपको एंगुलर पे करना है, आपको व्यू पे करना है, तो वो चीज अगर आपने रिएक्ट अच्छे से कर रखी है, आप रिएक्ट में परफेक्ट हो, आपकी क्या कहते हैं स्किल्स अच्छी है वेब डेवलपमेंट में, तो आप एंगुलर में बहुत वो छोटे मोटे चेंज होंगे. आप एंगुलर भी कर सकते हो, आप नेक्स्ट.js भी कर सकते हो. अब कंपनी में डिमांड्स क्या होती है सर, कई बार आपको फ्रंट एंड डेवलपर ऐसा हायर कर लेंगे, लेकिन उनको रिएक्ट नहीं चाहिए. फिर आपको फ्रंट एंड तो कर लिया, बट उनको क्या कहते हैं कई बार एंगुलर चाहिए होता है. तो उसमें क्या है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कहते हैं वो चेंज होता है लिखने का, बाकी सब चीजें सेम होती है. अगर आपकी लॉजिक एक बार क्लियर है फिर तो आप लैंग्वेज चाहे जैसे ही दे दीजिए. तो स्टूडेंट और see, कंपनी you have gone through this phase, that's why you are understanding this. And like people who start coding for the first time, I think you still knew a little bit of coding before you joined Sharpener. You still had some basic idea. Right? Yes sir, I'll do that because my background is a computer science developer. Right. Computer science from the book. So sir, मेरे पास मतलब कोडिंग सी होती, बस कॉलेज टाइम में उतनी अच्छी नहीं थी. कॉलेज टाइम में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है. कितना सीखते कॉलेज में पता है? सर
कितना जानते हैं कि तो हर बीटेक वाला जानता है कि बीटेक के कॉलेज में अगर हम बाहर निकलते हैं और हमें का कोई हेलो प्रिंट भी करवा देता है ना सर, वही बहुत होता है। बट उससे ज्यादा कोडिंग नहीं सीख पाता कोई भी कॉलेज में। हाँ लेकिन ये है जब हम कंपनी में जाते हैं तो वो चीज हमें मतलब क्या कहते हैं शार्पनर वाले पहले मतलब आप लोग शार्पनर वाले पहले से बहुत चीज हमें सर वो चीज वो करवा देते। बिकॉज कॉलेज टाइम में हमने सर एक थ्योरी पढ़ी होती है, बट आपके पास आते ही हमें सारी चीज प्रैक्टिकल मिली है। और डेली आपको क्या कहते हैं वो जो लेक्चर हैं वो शेड्यूल मिले हैं, हमें डेली लेक्चर शेड्यूल मिल रहे हैं। हमारे कोई डाउट आ रहे हैं तो हम मैसेज कर रहे हैं। इनफैक्ट तो कई बार जैसे कि वैभव सर एक बार गोवा में थे या कहीं और थे, तो उन्होंने वहां बैठ के भी हमारी मीटिंग ज्वाइन करी थी सर, हमारे डाउट सॉल्व कर रहे थे। मैं कहता था आप अपना वेकेशन कर लीजिए, पर कह रहे आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो सर ने वहां से 2 घंटे का टाइम निकाला था और सर हमारे जितने भी डाउट्स थे सर गोवा में बैठ के हमारे वैभव सर हमारे डाउट सॉल्व कर रहे थे। या आई रिमेंबर एक और मेंटर है, I'm forgetting whether it was Neeraj or someone. I'm forgetting the name of the mentor, but what he did was like his friend was in the hospital and he had to be with his friend, but उसका class भी था, Yes, and sir. We couldn't find another person, so he went to an empty area in the hospital and there also he took a 45-minute class. So yes sir, ये बहुत सपोर्टिव चीज है सर। मतलब आप अपना कोई भी जो टाइम रहता है शेड्यूल का वो डिले हो सकता है लेकिन वो छूट नहीं सकता। आपके जो डाउट्स हैं शार्पनर के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो डिले हो सकते हैं क्योंकि डिले होना पॉसिबल है, बट वो आपके छूटेंगे नहीं। right. अगर आपका 1 मिनट कर पाया तो आपका दूसरा मिनट सॉल्व कर देगा। अगर मान लीजिए वहां भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके साथ जो बाकी कलीग्स हैं, बिकॉज सबका व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ है, तो आप अपने सबसे बेस्ट है आप अपने कलीग्स को कांटेक्ट करो, साथ में काम करो। इससे क्या होगा ना कि दोनों की अप्रोच मिल जाएगी। जैसे हर फंक्शनैलिटी को हैंडल करने की एक पर्सन की एक डिफरेंट अप्रोच होगी, दूसरे पर्सन की डिफरेंट अप्रोच होगी। तो जिससे क्या है दोनों पर्सन जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो उनका जो एक रिस्पांस आएगा, जो लास्ट रिजल्ट आएगा, क्या पता दूसरे वाले का पहले वाले से ज्यादा अच्छा हो। तो ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन है ये मेंटर से पहले सर अगर स्टूडेंट खुद से करे ना तो वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज हम लोग भी जैसे जब शार्पनर पे थे तो हम जैसे 3-4 फ्रेंड्स थे, बाकी हमारे और फ्रेंड थे शार्पनर के, हम लोग सर आपस में कोऑर्डिनेट करके रोज शाम को जाकर और जैसे हमने कोई कोड किया है तो उसको आपस में पूछ लेते थे कि हमने इस जगह कौन सी फंक्शनलिटी लगाई है, इसके बजाय कुछ और लग सकता था, कोई और बेटर ले हो। मतलब ट्राई तो ये करते सर कि कोड छोटे से छोटा हो और फंक्शनलिटी ज्यादा कम करे, तो ये ज्यादा करते थे। So you focused on time complexity also, मतलब you were not just focusing on getting the test cases, you were also focusing Yes, कि sir. वो अगर O of n square है तो O of log n में हो पाए, O of log n में अगर हो रहा है O of n में हो पाए, you were focusing on all that. जी सर। Nice. सर ये भी फोकस था। और सर एक फोकस मेरा स्टार्टिंग से ये था कि जो भी कंपोनेंट जैसे हम लोग जैसे रिएक्ट पे मान लीजिए लास्ट में काम कर रहे हैं रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट पे, अगर कोई भी कंपोनेंट एक की बजाय दूसरी बार कॉल हो रहा है उसको सीधा एक कस्टम कंपोनेंट बना करके वहां से प्रॉप से किसी तरह उठा लेते हैं। बिकॉज इससे फायदा ये होगा जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी में वो कंपोनेंट 100 जगह यूज हो रहा होगा। अब जब ये आपने अपनी इनिशियल फेज में सीख लिया तो आप आगे वाले टाइम में ये चीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। Right, that is very true. Code reusability and even in my experience, what I've seen like good developers doing is like you give them a project and वो लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि हाँ मैं अपना प्रोजेक्ट को ढंग से एग्जीक्यूट कर दूँ, बस नहीं, they will think कि ये कंपोनेंट तो इधर भी कभी यूज हो सकता है, तो उसको इसी तरह से वो लोग लिखेंगे such that anyone can call that component. Right, एक कस्टम कंपोनेंट जैसे हर प्रोजेक्ट में टेबल्स होते हैं, मॉडल्स जैसे मॉडल्स होता है, मॉडल्स आप हर जगह बनाओगे तो सब वो बहुत बड़ा मॉडल होता है। एक कस्टम का कंपोनेंट बनाओ, प्रॉप्स के थ्रू पास करो और उठाओ, मतलब आपकी कोडिंग इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। राइट, प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो काफी अच्छा लगेगा। और जहाँ तक कि जब आपके अलावा जब कोई और सीनियर डेवलपर होगा या कोई आपका फ्रेंड या कलीग होगा, वो जब आपका कोड देखेगा और तारीफ करेगा तो सर आप अपने आप में वो चीज बहुत ज्यादा एप्रिशिएटिंग होती है इस फेज में। जबकि हम लोग अभी एज अ फ्रेशर ही है, बट फ्रेशर होकर के भी हम एक बहुत अच्छे सीनियर की तरह काम कर रहे हैं। nice, सर वो चीज तो बहुत ज्यादा बेटर है। right. And guys, like I know a lot of you are seeing like Tarun is a seasoned coder, पूरा शार्पनर का जर्नी कंप्लीट किया है, now he's working and everything. A lot of you might be coding for the first time, so all of these might be very fancy concepts and I'm pretty sure Tarun को भी day one पे ये सब कुछ भी नहीं पता था। वो gradually करके गलती कर करके he learned it and now he is a good coder. But Tarun, I want to understand one thing, that you said like at times like it can be that the mentor might not be able to solve it out at one go because he wants you to try. Like people do not watch hens, people do not try and everything, so we have told the mentors ki हाँ, force them to at least try once, only then help them clearly. So at times people have different timelines of completing the course. So like how long did you take with DSA, how long did you take for front end? Can you split that journey? Yes sir. Sir, actually for the OOPS
I will take around 1.5 months for the OOPS. It's a प्रोग्राम बहुत छोटे थे बट सर वो हमारी बेसिक थी, उसको डेवलप करने में टाइम लगा। बट उसी के बाद जैसे ही डीएसए पर मूव किया, डीएसए में मेरे को अराउंड 1 मंथ लग गया पूरा का पूरा डीएसए सारी फंक्शनैलिटी अच्छे से करने में। So when you say OOPS, you mean that like loop array and all that till that, then linked list. टाइम छोटा होता है। Okay. So linked list trees ये सब मतलब you took like the rest of the 1 month. Basics में तुमने बहुत ध्यान दिया। सर पहले सर बेसिक्स पे जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि जैसे OOPS और डीएसए में टाइम ज्यादा लगा। इसके बाद सर जैसे ही मैं वेब डेवलपमेंट पर मूव किया हूँ, वो कॉन्सेप्ट मेरे पहले बहुत अच्छे हो गए थे, तो बाकी जो फंक्शनैलिटी और जो चीजों को करने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मतलब उसके बाद मेरा वेब डेवलपमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ और सर रेट तो और ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया। जैसे जो हमारे जो 4 प्रोजेक्ट्स थे, वो 4 प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी तरह वो चीज हैंडल हो रही थी। जरूरी नहीं था कि अगर मतलब कि कहते हैं जैसे आप लोगों ने जैसे जो वीडियो देखी YouTube पे वो बहुत अच्छी वीडियो थी, बट अगर मेरे को कोई और प्लेटफॉर्म में मिल रहा है तो सर वो टाइम मेरे सीखने का था, मुझे जहां से जो चीज अच्छा लगा सीखने को। अब सर मैंने आपने जो क्या कहते हैं 4 प्रोजेक्ट किए थे, काफी अच्छे प्रोजेक्ट थे, यहाँ तक कि मैंने अपने रिज्यूमे में वही प्रोजेक्ट लगाए थे, उसकी मेरे को तारीफ भी मिली। बट उसके साथ मैंने 1-2 प्रोजेक्ट अपने खुद से बनाए, जिससे क्या है मेरी स्किल्स और ज्यादा बेटर हो जाए। बिकॉज़ टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है तो आप और जितने प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। जैसे मान लीजिए जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया था, क्या कहते हैं बैकएंड कंप्लीट कर लिया, अब उनके पास ये कहते हैं कोर्स तो कंप्लीट हो गया, बट अब इंटरव्यू में जैसे अभी कुछ टाइम होगा तो उतने में आप ट्राई करो कि 2 या 3 प्रोजेक्ट और बना दो। बिकॉज आप इंटरव्यू के टाइम पे फिर आप ऐसा जवाब दोगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा ये चीज कर रखी है, आप और ज्यादा चीज दिखा पाओगे और आप और जो चीजें आपने करी है वो आप अपने कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छी तरह से उन्हें समझा पाओगे, तो वो चीज ज्यादा बेटर। यहाँ तक कि सर इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है जब सामने से कोई बंदा इंटरव्यू ले और आप जब उसे बता रहे हो तो आप उसी के कॉन्सेप्ट में आप उसे घुमा रहे हो, तो कई बार सर वो कंफ्यूज जाता है कि मैं फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहा हूँ या मैं एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर और सर ये बहुत मैटर करता है, आपके क्या कहते हैं जो पे स्केल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। Okay, so quick tip over here. What Tarun was trying to say is कि if you are really focused on your projects, because it makes sense also that projects will control. You can control a lot in your interview. आज इंटरव्यू की क्वेश्चंस तो इंटरव्यू कुछ भी दे सकता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बट प्रोजेक्ट हाउ डू यू एक्सप्लेन वो तुम्हारे कंट्रोल में है। आपने जो क्वेश्चंस लिए हैं 90% वो तक सर 95% क्वेश्चंस वही हैं। मैंने सर बहुत इंटरव्यू दिए थे सर 95% क्वेश्चन वही है, लेकिन जो 5% है सर वो इंटरव्यू के मोड पे है। एक बार वो कुछ भी पूछ लेता था वो कुछ भी। तो 92% क्वेश्चन वही है जो आप लोगों ने जो प्रोवाइड करे थे, सेम वही चीज सर। एरे मतलब लूप कैसे है, सेम वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे सेम वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल करवा दिए हैं, हम प्रोजेक्ट अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट खुद से बनाया था, तो अब जैसे कई इंटरव्यू में क्या हुआ था उन्होंने मेरे को कहा था कि आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, तो सर मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप उनको वो चीज समझा दी कि यहाँ पे मैंने ऐसा कस्टम कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे ऐसा यूज किया है, तो वो चीज काफी सर बहुत मैटर करती है इंटरव्यू के टाइम पे। राइट। एक्चुअली ये हम लोग क्रेडिट पूरा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस का पूरा डेटा सेट भी आया है, लाइक पहले हम लोग का पूरा परफेक्ट क्वेश्चन सेट नहीं था। देन लाइक आवर स्टूडेंट्स गिव इंटरव्यूज, वी आल्सो लर्नड अ लॉट कि क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, ये चेंज होते रहता है, तो हम लोग को भी अपना कोर्स वर्क को अपडेट करते रहना पड़ता है। आज एज यू सेड कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, आज हो सकता है एआई रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए थोड़ा कि एआई कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा एक्चुअली यस, जब मेरे पास मतलब कहते हैं शुरू में 2-3 इंटरव्यूज थे तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टिपिकल चीज पूछ ली, वो चीज हमारे इंटरव्यू सेट में थी नहीं, तो मैंने वो यश सर को बताया, यश भैया ने क्या कहते हैं वो चीज अपग्रेड करी, मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज भी दी। उसके बाद सर ने क्या कहते हैं वो इंटरव्यू क्वेश्चन से भी ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ अब जैसे कंपनीज हर बार स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की डिमांड हो रही है, तो वो चीज आपके जो नए वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस है बाद में मैंने देखा जो मेरे बाद जो वो जिन्होंने ज्वाइन किया था वो क्वेश्चन उनके में ऐड रखे थे, तो उनका बेनिफिट काफी अच्छा मिला। Have to do it. I mean, if you are upgrading your skills, if interviewers are upgrading their skills, then we as educators will also have to upgrade our skills. So this yes, is sir. So you completed this entire chunk in 4 months, your entire course journey. Yes, sir. How was your interview phase? Like, मतलब उधर क्या challenges लगे starting में? Interview के लिए तुम खुद को कैसे prepare किए? Forget sharpener, खुद को कैसे किया? सर forget sharpener सर इंटरव्यू के लिए सर इंटरव्यू में कुछ नहीं था स्टार्टिंग में पहले थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की दिक्कत आई थी, बिकॉज हमने क्या कहते हैं बिकॉज पैकेज का डिमांड ज्यादा है, तो एक बार को डर रहा था कि हम लोग ऐसा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता बाद में निकाल दिए जाएंगे, वो सब बहुत डाउट्स रहते हैं मन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहते हैं शुरू में ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, जब सर
सेकंड मेरा इंटरव्यू निकल गया था, उसके बाद वो काउंटर ऑफर के थ्रू मैं अपना पैकेज बढ़ाता गया। ये चीज मुझे वैभव भैया ने बताई थी कि कैसे एक काउंटर ऑफर ले लो, हम तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू करवाएंगे, वहां पे उस काउंटर ऑफर से मतलब हम तुम्हें ज्यादा का डिमांड करवाएंगे। वैभव अपने खुद के लाइफ में भी ऐसे ही किया है, लाइक अपना पैकेज जैसे वो ग्रो कर दिया। यस सर, मतलब एक काउंटर ऑफर से अपग्रेड होते गए, तो लास्ट में फिर ये पैकेज मिला, फिर मैंने कहा अब यही रुकते हैं, लेकिन ये कंपनी ज्वाइन करते हैं। नाइस नाइस, वेरी नाइस। कंपनी तो बहुत अच्छी अच्छी आई थी, बैंगलोर की, गुड़गांव की, बहुत अच्छी एमएनसी ग्रेड की आई थी कंपनी। एक्रोलिक्स क्यों सिलेक्ट किया तुमने? इज इट द पैकेज और कुछ और? जो मेन रीजन था सर, वो मेरे घर से अराउंड 15 टू 20 मिनट्स की दूरी पे है। ओह लवली, बहुत बढ़िया। सबसे पहला मैंने उससे आगे कुछ देखा ही नहीं, मैंने कहा पास में ही है, सैटरडे ऑफ है, वीकली काम है, कर लो ज्वाइन। बढ़िया। सर 15-20 मिनट दूरी पे है, मतलब मेरे को जाना है ना। Nice, nice. Okay. By the way, a lot of people are now afraid, मतलब because economic slowdown है, and हाँ मतलब 6 महीने पहले जितने इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे आज भी आ रहे हैं, बट समझ लो उसका 70% आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है। तो some people like हो सके थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है to get a good offer or to get like crack interviews। तो उनके लिए टिप्स क्या है तुम्हारा? Like how would you suggest them? टिप्स सर मैंने पहले बता दी थी उनके लिए टिप्स कि आपको अगर टाइम लग रहा है अभी अपने इंटरव्यू में, जैसे कई बार क्या होता है आपने आज इंटरव्यू दे दिया, कई बार जो एचआर वगैरह होते हैं वो पूरा हफ्ता ले लेते हैं केवल रिस्पॉन्ड करने में, आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में। तो सर इसमें में सबसे अच्छा टाइम है, आप अपनी जो स्किल्स है ना, आप एक तो प्रोजेक्ट एक हफ्ते में आराम से कर सकते हो, ये जो छोटे मोटे होते हैं, जिनसे आपके स्किल्स और आपके काम करने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए रिसेशन के टाइम पे भी सर कंप्लीट बहुत है, अब सर शार्पनर जैसे आप लोग भी इंटरव्यू बहुत शेड्यूल करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सर वो रिजेक्ट होने पे ना वो अपने पॉइंट्स को पकड़ ले कि वो रिजेक्ट हो क्यों रहे हैं। राइट सर फीडबैक काफी अभी भी लोग होते हैं, राइट। हाँ बट वही है, आपको जैसे कोई इंटरव्यू करवाए तो आपका मतलब मेन टारगेट हो, आप उसे इंटरव्यू को तुरंत क्रैक कर लो। जिससे क्या है, अगर आपको चलो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप ऐसा उसे काउंटर ऑफर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पैकेज छोटा मिला, 4 या 5 लाख का ही मिला, आप उसे ऐसा काउंटर ऑफर करके आप 6-7 पे जा सकते हैं, 7-8 का मिला आप 9-10 पे जा सकते हैं। तो सर वो काउंटर ऑफर तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उस काउंटर ऑफर के लिए आपको जो शुरू में जो जॉब्स मिल रही है वो तो आपको सर निकालनी पड़ेगी। अब सर ऐसा तो डायरेक्ट क्या वो 10-12 लाख की जॉब मिल जाएगी, करेक्ट। एंड ऑल्सो लाइक जब तक तुमको मतलब काफी कॉल्स नहीं आ रहे, फिर इन दैट वेटिंग पीरियड, राइट, I mean that's a very good period when other people might be getting calls. I mean अगर आज कंपनी आ रही है तो हायर करने के लिए आ रही है, ऐसे तो कंपनी नहीं आ रही है। So yes sir, yes know why you're missing। And also interesting thing guys, what Tarun is also saying is कि projects will not just help you during an interview, it will also help you get shortlisted। अगर if you have very dynamic different kind of projects, तब resume भी वो दिखेगा। yes sir, lovely। How you liking your job right now? Is like apart from 10 मिनट की दूरी पे है, काम कैसा लग रहा है? बहुत सर, जॉब तो बहुत सर, जब हम कोर्स कर रहे होते हैं हमारे पास मनी का सोर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट जैसे हम जॉब पे आ जाते हैं सर, वर्क एनवायरनमेंट में ये समझ लीजिए 9 आवर की शिफ्ट है, 3 to 4 आवर्स की वर्किंग होती है, बाकी पूरा टाइम सब लोग एंजॉयमेंट प्लेमेंट में जाता है, वीकेंड ऑफ रहता है सब, मतलब उसके बाद सर लाइफ एकदम चेंज हो जाती है आपको। मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट होता है कंपनी में वो 3 months 4 months ऐसे चलता है, तो आपको मतलब जो प्रोजेक्ट आप अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर रहे हो वो आपको 3-4 महीने में करना है सर। टाइम में आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, आपकी जैसे जॉब लगेगी आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी उसके बाद। हाँ लर्निंग फेज में तो आपको थोड़ा सा बहुत फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर ये ड्रीम कर लीजिए कि मतलब आपकी जितनी अच्छी पैकेज पे लगेगी, आप जितने अच्छे पैकेज पे आप वो क्वालिफाई कर पाओगे, आप उतने अच्छे पैकेज पे जा पाओगे और उतनी अच्छी जॉब की तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट बहुत टाइम तक चलता है। यहाँ पे तो शार्पनर पे तो हमने बहुत जल्दी प्रोजेक्ट किया बिकॉज हमें सीखना था, बट जब हम कंपनी में तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, राइट। एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो तुम काम भी किया, लाइक तुम कंटिन्यूअसली इंप्रूव तो कर ही सकते हो, लाइक न्यू कंपोनेंट्स डाल के, न्यू मॉड्यूल्स डाल के, बेटर एपीआईज, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। लवली, नाइस। तब पूरा स्ट्रक्चर भी शुरू हो जाता है कोडिंग करने का। जैसे पहले हम एपीआई से, तो पहले हम एपीआई को किसी और तरह से यूज करते थे, अब हम लोग क्या करते हैं हर चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके, अगर हमें जो सीएसएस हर जगह कॉमन हो रही है उसके लिए एक अलग सीएसएस की फाइल बना लो, वो कॉमन हो गई। जो कंपोनेंट हर जगह यूज हो रहा है उसका एक कस्टम कंपोनेंट बना लो,
अब एक तो पता है हर जगह यूज होगी, इसके लिए एक कस्टम कंपोनेंट बना लो। मतलब जो मेन फोकस करो कस्टम कंपोनेंट से, जिससे क्या है आपको आपके जूनियर्स हो, आपके सीनियर्स हो, कोई भी XYZ मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट आउटसोर्स भी हो जाता है तो भी आपको वो चीज सीखने में, मतलब कोई अगर आपका XYZ पर्सन आपका कोड देखेगा सर वो तारीफ ही करे, और सर वो तारीफ करने के बाद ना अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमें कोडिंग आती है। नाइस नाइस। एंड ऑल्सो मतलब जो जूनियर्स आएंगे, मतलब आज तुमको थोड़ा जब टाइम हो जाएगा देन तुम्हारी कंपनी में जूनियर्स भी आएंगे, उस समय जब तुम उनको ट्रेन करोगे ना तब तुम समझोगे कि हम लोग एज मेंटर्स हम लोग को कैसा लगता था। यस सर वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हमारे सामने जूनियर्स आते हैं और सर दिमाग में आता है यार कुछ टाइम पहले जब तक मैंने मतलब शार्पनर की हम लर्निंग कर रहे थे उस समय सर हमारी फेस इससे भी ज्यादा खराब थी और सर आज हम यहाँ पे इतनी जल्दी, सर बहुत फर्क पड़ता है। नाइस। इसीलिए हम लोग एक्चुअली पेयर इंटरव्यूज भी रखते हैं कि लाइक जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो जूनियर स्टूडेंट्स को भी थोड़ा गाइड करे, इंटरव्यू करे, टीम फॉर्म मैंने करे। बहुत इंटरव्यूज लिए मैंने भी सर क्या हुआ था जब मैं वेब डेवलपमेंट दे रहा था तो उस समय मेरे पास मैं क्या अगर मुझे जैसे अपना टाइम था तो मुझे ऊप्स और डीएसए का अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे करने थे बिकॉज़ बीच में रिवीजन तो होता ही है। तो रिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने कहते हैं सर ने मेरे को शीट प्रोवाइड कर रखी थी तो उस शीट में मैं जाकर के अपना नाम अपडेट कर देता था। तो जैसे ही मतलब वो कोई इंटरव्यू शीट होता था तो हम जूनियर्स का जो इंटरव्यू ले लेते थे उससे क्या था हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते थे। राइट। जरूरी नहीं है कि अगर हमने जावा चूज करी है, अगर जैसे जो जूनियर है मान लीजिए उसने पाइथन चूज करी है, हमने जावा यूज करी थी तो सर उससे कोड तो वही है, लॉजिक वही है, बस लिखने का तरीका चेंज है। तो सर उससे वो चीज भी काफी अच्छी है। वो हाँ वही मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारा, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट पे इतना फोकस किया ना इसीलिए तुम्हारे लिए अडैप्ट करना बहुत इजी था। मतलब लैंग्वेज डिड नॉट मैटर टू यू, कॉन्सेप्ट्स मैटर टू यू, सो दैट इज रियली गुड। नाइस Tarun, नाइस। Alright Tarun, like this was really helpful. I'm pretty sure बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है how to, especially the project part. I think that's an eye opener. तुम्हारे लिए projects कितना different रहा था, and I'm pretty sure like a lot of people will contact you on LinkedIn now that like you've shared your interesting journey. Yes, sir. Thanks a lot Tarun. Alright. Thank you a lot sir. It's a pleasure to meeting you. बहुत अच्छा लगा था सर आपने ये जर्नी के साथ। Thanks Tarun. Bye bye.